अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस पार्टी ने जीएचएमसी इंतखाबात पे खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर 100% अमल किया है। जीएचएमसी हुदूद में वाईफाई मुफ्त देने का वादा, कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी मंशूर किया जारी। हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के लिए दफातर पर हुजूम, मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका दफातर में पर्चे नामजदगी किया दाखिल। सदर जनसेना पार्टी पवन कल्याण की बीजेपी कायदीन से मुलाकात, जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की तायीद का ऐलान। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने डेटिंग फ्रॉड गैंग का पर्दा किया फाश, बैन रियासती टोली गिरफ्तार। साइबराबाद कमिश्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि टीआरएस ने खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात देने के साथ साथ बीसी तबके को 50% टिकट फराहम की हैं, जबकि कांग्रेस बीसी तबके के साथ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती है। केटी रामाराव ने बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात में फिर एक मरतबा टीआरएस का ही मेयर और डिप्टी मेयर ओहदे पर फायज होगा और इसके बाद वाईफाई मुफ्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी टीआरएस के केशवराव, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మనం ఈ రోజు హైదరాబాద్ ప్రజలను రెండు ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండు ప్రశ్నలను ఆలోచించమని కోరాల్సిన అవసరం ఉంది. మొట్టమొదటిది మీరు చెప్పాలి ఖచ్చితంగా, దయచేసి అందుకే మీకు వివరంగా చెప్తా ఉన్నాను. మీరు తిరిగి ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు ఒక మాట అడగాలి. మరి మనం ఇక్కడ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి 6 ఏళ్ళైంది. ఈ 6 ఏళ్లలో టీఆర్ఎస్ ఏం చేసింది అంటే ఇగో ఇన్నున్నాయి. ఇలా మీరు ఇవ్వండి. 6 ఏళ్లలో ఏం చేసింది టీఆర్ఎస్ అంటే ఈ పుస్తకం ఇవ్వండి, మీరు కూడా చదువుకోండి, చెప్పండి మీ డివిజన్లో ఏమైంది, మీ నియోజకవర్గంలో ఏమైంది, బయట హైదరాబాద్లో ఏమైంది, దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ అయితేనేంది, ఇంకోటి చాలా చెప్పొచ్చు. 100 చూపెట్టచ్చు పనులు. బ్రహ్మాండంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని 100 పనులు చూపెట్టచ్చు. కానీ మీరు అడగాల, మిమ్మల్ని అడిగేటోళ్ళని. మేము 6 ఏళ్ళైంది అధికారంలోకి వచ్చి. మరి ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అధికారంలోకి వచ్చి 6 ఏళ్ళైంది. వాళ్ళు మనతోనే వచ్చారు. వాళ్ళు ఒక్క పనన్నా, మేము 100 పనులు చేసినాం, 100 చూపెడతాం. వాళ్ళు ఒక్క పనన్నా చూపెట్టగలుగుతారా? హైదరాబాద్కి మేము ఫలానా పని చేసినాం ఒక్కటంటే ఒక్కటి చూపెట్టగలిగే దమ్ముందా వాళ్ళకు? అడగాల, ఖచ్చితంగా అడగాలి, నిలదీయాలి. కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం 6 ఏళ్ల నుంచి ఉంది, మా ప్రభుత్వం 6 ఏళ్ల నుంచి ఉంది, మేము ఇగో ఇన్ని పనులు చేసినాం. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ కోసం చేసిన ఒక్క పని, ఒక్క బిల్డింగు, ఒక్క రోడ్డు, ఒక్క బ్రిడ్జు ఏదైనా ఉందా? చూపెట్టగలుగుతారా వాళ్ళు? ఏదీ లేదు. ఉత్తగానే మాటలతో, ఊకదప్పుడు ఉపన్యాసాలతో, పొద్దుగడుపుడు తప్ప ఏమీ లేదు. రెండవ ప్రశ్న కూడా అడగాల, మీరు ఖచ్చితంగా అడగాలి. హైదరాబాద్ 6 ఏళ్ల నుంచి ప్రశాంతంగా ఉంది. 6 ఏళ్ల నుంచి ఎక్కడ ఎలాంటి గొడవ లేకుండా, ఎక్కడ ఎట్లాంటి పంచాయతీలు లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది. ప్రజలను అడగాలి. అభివృద్ధి కోసం దూసుకొని పోతున్న హైదరాబాద్ కావాలా? అభివృద్ధిలో దూసుకొని పోతున్న హైదరాబాద్ కావాలా? లేదా అశాంతితో, నిత్యం ఘర్షణలతో, నిత్యం పంచాయతీలతో, గతంలో కమ్యూనల్ టెన్షన్స్తో తల్లడిల్లిన హైదరాబాద్ కావాలనా? అభివృద్ధి కావాలా? అరాచకం కావాలా? ఏది కావాలని అడగాలి. ప్రజలకు ఖచ్చితంగా అడగాలి. డెఫినెట్గా అడగవలసిన అవసరం ఉంది. డూ యూ వాంట్ డిసైసివ్ పాలిటిక్స్, డిసైసివ్ పాలసీస్ ఆర్ డివైజివ్ పాలిటిక్స్? విభజన రాజకీయవాదులు కావాలా? లేదా పురోగమనశీల నిర్ణయాలు తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి పదంలో ఒక విశ్వనగరంగా మలచడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కావాలా? అడగవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నది. తప్పకుండా అడగాల. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నిక మాత్రమే కాదు, ఇది తప్పకుండా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక కీలకమైన ఎన్నిక. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి తప్ప ఆషామాషిగా.
रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए मरकज़ी हुकूमत के तमाम इम्तिहानात इलाक़ाई ज़बानों में मुनक़्क़िद करने की दरख्वास्त की है। अपने मकतूब में वज़ीर आला KCR ने कहा कि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मरकज़ी अवामी सेक्टर, इंडियन रेलवेज़, दिफा, कौमी बैंक्स में तक़र्रुआत के लिए सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी में इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इससे इलाक़ाई ज़बानों में तालीम हासिल करने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के तमाम रियासतों के तलबा को मसावी मौक़े फराहम करने के लिए मसाबक़ती इम्तिहानात इलाक़ाई ज़बानों में मुनक़्क़िद किए जाएँ। बिलख़ुसूस मरकज़ी हुकूमत के इदारों में तक़र्रुआत के लिए इलाक़ाई ज़बानों में इम्तिहान हो तो तलबा को फ़ायदा होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को भी मकतूब रवाना करते हुए वज़ीर आला KCR ने साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव पर पोस्टल स्टाम्प की मंजूरी पर भी तवज्जो दिलाई। बल्दी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल के आखिरी दिन मुख्तलिफ डिवीजन से मजलिसी उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। हल्के चारमीनार के शालीबंडा डिवीजन से मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और घासी बाजार से परवीन सुल्ताना ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से अवाम के बीच में रहने वाली जमात है और बल्दी इंतखाबात में अपने तरक्याती कामों की बुनियाद पर ही मजलिस इंतखाबी मैदान में उतरी है और तमाम हल्के जात पर शानदार कामयाबी मजलिस हासिल करेगी। इस मौके पर मजलिसी उम्मीदवारों मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और परवीन सुल्ताना ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह रहे कि परवीन सुल्ताना साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस की अहलिया हैं। नमाज पढ़ लगे फोन चलो भाई चलिए। आज जैसा कि बल्दी इलेक्शन का इनेकाद अमल में आया, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में आज शालीबंडा बल्दी डिवीज़न और घासी बाज़ार बल्दी डिवीज़न से घासी बाज़ार से हमारे मुज़फ़्फ़र साहब को और घासी बाज़ार डिवीज़न से परवीन सुल्ताना अहलिया गौस साहब को टिकट दिया गया। अभी नामिनेशन फ़ाइल किया गया। अल्लाह के करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद के अंदर बहुत सारे हलक़ों से अपने उम्मीदवार खड़ा की। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला हम काम की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेंगे। मुखालिफिन हर ज़माने में रहे, इस मरतबा भी काफ़ी मुनाफिकीन और तमाम फ़िरक़ा परस्त तंजीमें ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नाकाम बनाएं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से किसी भी तरीके से अगर वो कोशिश करें तो उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं होगी। इंशाअल्लाह हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार न सिर्फ मुंतखब होंगे बल्कि भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। मेरी आवाम से ख्वाहिश है कि इस मरतबा अपने आप एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करें। शुक्रिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, इस बार भी मुझे मौका मिला खिदमत का। इंशाअल्लाह ताला पिछले 5 साल की तरह इस 5 साल में भी डेवलपमेंट के काम करूँगा। पिछले 5 साल में मैंने 25 करोड़ के इससे ज़्यादा के काम करवाया हूँ। मैं साथ ही साथ मुमताज़ अहमद खान साहब का, मौलम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको इस बार फिर एक बार मौका दिए इंशाअल्लाह। हल्का असम्बली बहादुरपुर के मुख्तलिफ डिवीजन्स के मजलिसी उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। किशनबाग डिवीज़न से हुसैनी पाशा, रमनसपुरा डिवीज़न से मोहम्मद खादर,
दूधबौली से मोहम्मद सलीम, फलकनुमा से ताराबाई, नवाब साहब कुंटे से शीनी फातिमा ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां के हमरा चंदूलाल बारादरी रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मौजम खां ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तरक्याती कामों की बुनियाद पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और बहादुरपुरा हल्के के तमाम 6 डिवीजन्स में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। भाई मैं अभी कॉल कर रहा हूँ आपको। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 डिवीज़न जो है, फलकनुमा डिवीज़न, नवाब साहब कुंटा डिवीज़न, जहानुमा डिवीज़न, दूधबौली डिवीज़न, रमनसपुरा डिवीज़न, किशनबाग डिवीज़न के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स थे, आज सारे कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन दाखिल करे हैं। इस मौके के ऊपर मेरे संगात हमारे सीनियर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब एम.ए. गफ़्फ़ार साहब और पार्टी के सुदूर मोतमदीन व सदरा मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी आवाम के दरमियान में जब जाएगी, अपने उम्मीदवारों को ले लेकर डेवलपमेंट के ऊपर जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, MLAs, कॉरपोरेटर, वर्कर्स साल के 12 महीने हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम के साथ रहते हैं, उस एरियों का डेवलपमेंट चाहते हैं, उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के लिए आवाज़ उठाई है। गवर्नमेंट के जो गलत पॉलिसीज़ रहते हैं, हमेशा तायद करने की जगह गवर्नमेंट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद करी है। जहाँ मुखालिफत करना चाहिए वहाँ पर खुलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, उस गवर्नमेंट के प्रोग्रामों को मुखालिफत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है और इंशाअल्लाह ताला 6 के 6 उम्मीदवार बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और हमें उम्मीद है आवाम पर इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और भरपूर निकल कर अपने अपने घरों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। शुक्रिया। मजलिसी उम्मीदवारों ने भी आज अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। आखिरी लम्हात में पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए गैर मामूली हुजूम भी देखा गया। छावनी डिवीज़न वार्ड नंबर 29 से मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल सलाम शाहिद ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हुए आवाम की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ कर देने का अज़्म ज़ाहिर किया। मजलिस के एक और उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने शास्त्रीपुरम से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हो गया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार की हैसियत से नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने
जो एतमाद से मुझको शास्त्रीपुरम डिवीज़न का उम्मीदवार बनाया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना वो रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टे का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज जिस एतमाद के ज़रिए सदर मोहतरम ने हमको टिकट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो एतमाद हम पे किए हैं वो एतमाद को हम कभी ठेस पहुंचने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज जनाब रहमत बेग के साथ मिलकर इस डिवीज़न की तरक्की के लिए आवाम के जो मसाइल है उन मसाइल को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जो सदर साहब का हुक्म होगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। मैं फिर एक बार जिस तरीके से सदर मोहतरम ने मुझ पर एतमाद किया उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शास्त्रीपुरम के डिवीज़न के तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब मिसबाउद्दीन साहब जो हमारे साथ में है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हर बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही फतेह हो, तो मैं तमाम जो मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार जो मक्के मदीने में भी मेरे लिए दुआएं किए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और 4TV का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और एतमाद पेपर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं, इंशाअल्लाह जो एतमाद मुझ पर सदर मोहतरम ने किया मैं उस पर पूरा उतरूँगा। और मैं मेरे भाई मुर्तज़ा भाई का भी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका अता किया। और अफरोज़ भाई, ये सब एक टीम बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब व कामरान करेंगे। इब्तिदाई के सदर व मोतमदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ डिवीजन्स के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कॉरपोरेटर इलेक्शन के लिए टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह रहे कि हल्के में ललिता बाग, उप्पूगुड़ा, कंचन बाग, रियासत नगर, बारकस और चंद्रायन गुट्टा डिवीजन से जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आज हल्का बारकस डिवीज़न से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से फॉर्म सबमिट किया गया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नक़ीब मिल्लत व आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का बहुत ही एहसान ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि जिन्होंने हल्के बारकस डिवीज़न से फिर से दोबारा दूसरी मरतबा खिदमत का मुझे मौका दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर आज जुम्मे के दिन हाफिज़ बाबा नगर ब्लॉक का पैदल दौरा है, तो मैं यहाँ की बाबा नगर की सारी आवाम से अपील करता हूँ कि 1 दिसंबर के दिन इलेक्शन है, तो उस दिन आप तमाम से ये गुजारिश है कि उस दिन अपने अपने घरों से निकल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट दीजिए। क्योंकि आपने देखा है हर वक्त हर टाइम पर आपके दरमियान में आने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और इस बार शायद कई और चेहरे भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन आप तमाम को मालूम है कि आपके कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न में वाक़ फंक्शन हॉल में डिवीज़न के इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया और इजलास से खिताब भी किया। उन्होंने तमाम इब्तिदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों को हिदायत दी कि वो डिवीज़न के उम्मीदवार अब्दुल सलाम शाहिद की कामयाबी के लिए काम करें। इस मौके पर साबिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद अफरोज़, मोहम्मद रशीद कुरैशी के अलावा दीगर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर छावनी डिवीजन में और दूसरा एरिया मिला 16-3 का कुछ हिस्सा, उसके अंदर भी हमने काफ़ी काम करवाया। तो बहरहाल
मेरा बोलने का मकसद ये है कि मजलिस आपकी ताकत है, मजलिस आपकी जमात है, मजलिस ही सिर्फ आपके लिए सोच सकती है, कोई दूसरा आपके लिए कभी नहीं सोच सकता। हर कोई सोचेगा तो अपनी मफाद के लिए सोचेगा। आज मैं हूँ, कल मुर्तुज़ा थे, आज मैं हूँ, कल दूसरा रहेगा, मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगे, लेकिन मजलिस का कारवां इंशाअल्लाह चलता रहेगा। तो बहरहाल एक अच्छे उम्मीदवार को जिसके अंदर काम करने की जुस्तजू है, जिसमें काम करने की लगन है, ऐसे उम्मीदवार को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके हमारे दरमियान में भेजा। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद भी यही रखते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क के ऐसा काम किया, आगे भी हम इंशाअल्लाह इसी तरीके से टीम वर्क के हिसाब से काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही साथ आप लोग जैसे जानते हैं 2018 के सितंबर के अंदर असेंबली डिसॉल्व हुई थी। असेंबली डिसॉल्व होने के बाद दिसंबर के अंदर इंतखाबात हुई थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तक हम लोग लगातार असेंबली एमएलए इलेक्शन की कैंपेनिंग करते रहे। एमएलए इलेक्शन खत्म हुआ, उसके फौरी बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया। फिर पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मुलविस हो गए। उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म हुआ, उससे सुधरे कि नहीं, कोरोना आ गया, फ्लड्स आ गए, असला के इलेक्शंस आ गए, बिहार के इलेक्शंस आ गए। बहरहाल अब मजलिस एक चीज वाज़ेह तौर के ऊपर आवाम के अंदर चले गई कि मजलिस हर मुकाबले के ऊपर फाइट करना चाहती है, फाइटरों की जमात। टीआरएस कायद पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस को रियासत और हैदराबाद की आवाम की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए टीआरएस हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात, रैतू बंधु, केसीआर किट और दीगर स्कीमात को रोकने और हैदराबाद की पुरअमन फिजा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। అక్కడ రిజర్వేషన్ ఉన్నా లేకున్నా ఖచ్చితంగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీకి సంబంధించిన పొందిక 51% కంటే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అది ఎక్కడైనా కానివ్వండి, అది ప్రతి ఎన్నికల్లో కానీ మార్కెట్ కమిటీల్లో మొదటిసారి రిజర్వేషన్లు పెట్టింది కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీనే భారతదేశంలో. అట్లానే అనేక సందర్భాల్లో పార్టీలలో, కమిటీలలో, అన్నిట్లలో కూడా ఖచ్చితంగా పాటించి తీరుతున్నది. ఇవాళ మేము గర్వంగా ఉన్నాం. ఇవాళ దరిదాపుగా 75 సీట్లు ఇవాళ మొత్తం కూడా బీసీలకే కేటాయించడం జరిగింది. 2 మాత్రమే రిజర్వేషన్ ఎస్టీస్కి ఉంటాయి, కానీ 3 సీట్లు జనరల్ సీట్లో కూడా ఎస్టీకి కేటాయించుకున్నాం. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने अपनी जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दिए गए चैलेंज के बाद ठीक 12 बजे आज वो भाग्य लक्ष्मी चार मीनार मंदिर पहुंचे, जबकि पुलिस की जानिब से चार मीनार के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह रहे कि सदर रियासती बीजेपी बी संजय ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बी संजय पर हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 10,000 रुपये रोकने के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए वज़ीर आला को जुमे के रोज़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने का चैलेंज किया था, जिस पर बी संजय भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे और पूजा की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी का मेयर ओहदे पर होगा और हैदराबाद के मुस्तहिकीन को 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క లెటర్ను ముద్రించడము, నా సంతకాన్ని కూడా ఫోర్జరీ చేసి ఎన్నికల కమిషన్ రాయడం, దాన్ని సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ వల్ల నిధులు ఆపేసము, వరద ముంపు గ్రామాలు, ముంపు ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి డబ్బులను ఆపేసామని చెప్పి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆరోపించడం చాలా బాధ అనిపించింది. దానికి స్పందించి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నేను వెంటనే పూర్తి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ లెటర్ మాది కాదు, ఈ సంతకం నాది కాదు. గతంలో అనేక సందర్భాల్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి లేఖ రాసినాను, ఎన్నికల కమిషన్ లేఖ రాసినాను. దాన్ని తెప్పించుకొని చూసి
స్పందించినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దానికి భిన్నంగా స్థాయిని మర్చి స్థాయి దిగజారి वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को देशद्रोही और मुखालिफ मुल्क करार देने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग है, जिसका सबूत ये है कि पहले करीमनगर, निज़ामाबाद में और चंद रोज़ खबर दुबाक में बीजेपी की कामयाबी कांग्रेस की ही मरहून मिन्नत है। उन्होंने हैदराबाद की आवाम से अपील की कि वह हैदराबाद की तरक्की और अमन अमान की बरकरारी के अलावा टीआरएस हुकूमत की फलाह स्कीमात को जारी रखने के लिए जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। అసలు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీలపై చీకటి ఒప్పందాలు, ఈ ఇద్దరే తోడు దొంగలు. టీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళిద్దరే ఎన్నో సందర్భాల్లో ఒకరికొకరు ఓట్లు వేసుకున్నాయి, మన కండ్ల ముందున్నాయి. సాక్ష్యాలతో సహా మేము నిరూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అది నిజామాబాద్ కావచ్చు, అది కరీంనగర్ కావచ్చు, నిన్న దుబ్బాక కావచ్చు. నిజామాబాద్లో అంతకుముందు 2014లో ఆ అభ్యర్థి మధుయాష్కి 2,60,000 ఓట్లు వస్తే 2019 వచ్చే నాటికి 60,000 వచ్చింది. అవాళ బీజేపీకి 1,00,000 ఓట్లు లేని బీజేపీకి ఇవాళ 3 లక్షలకు వచ్చింది. స్పష్టంగా కనబడుతుంది కళ్ళ ముందు. सदर जनासेना पार्टी और फिल्मी अदाकार पवन कल्याण ने मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी और साबिक़ रुकन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी सियासी पार्टी जनासेना ने जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों की तायद करने का फैसला किया है, जिससे हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए राह हमवार होगी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क की अजीम शख्सियत करार दिया। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने पवन कल्याण से इजहार तशक्कुर करते हुए दावा किया कि बीजेपी जीएचएमसी इंतखाबात में 100 से ज़ायद डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करते हुए मेयर का ओहदा भी हासिल करेगी। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात में टीडीपी तनहा मुकाबला करेगी और तेलुगुदेशम दौरे इख्तिदार में हैदराबाद की तरक्की के लिए किए गए कामों को पेश करते हुए राय दहिंदों से वोट तलब करेगी। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम 90 डिवीजन्स पर मुकाबला कर रही है और इन 90 उम्मीदवारों में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है, जिनमें सीनियर तेलुगुदेशम कायद व सहाफ़ी ज़हीरुद्दीन समर, हल्का असम्बली मुशीराबाद के भोलकपुर डिवीज़न से सैयद सिराज को, कोंडापुर डिवीज़न से और फरहाना बेगम को बेगमपेट डिवीज़न से टिकट फराहम किया गया है। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मरतबा बुधिया नगर डिवीज़न वार्ड नंबर 146 से नजमा अकबर को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका पर्चे नामजदगी उनके नुमाइंदे एम खादिर ने मुतालिका दफ्तर पहुंचकर दाखिल किया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इसी तरह पर भोलकपुर डिवीज़न वार्ड 88 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहम्मद गौसुद्दीन तलहा को मैदान में उतारा है। मोहम्मद गौसुद्दीन तलहा ने मुतालिका दफ्तर पहुँचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का आज दोपहर 3 बजे अख्तिताम अमल में आया। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि जोनल दफातर और सर्कल दफातर में 3 बजे के बाद भी कतार में खड़े रहने वाले उम्मीदवारों के पर्चे कबूल किए गए। पर्चे नामजदगी के आखिरी दिन बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। टीआरएस, मजलिस, बीजेपी, कांग्रेस, बाएं बाजू के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की। गुज़िश्ता रोज़
तकरीबन 537 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल हो चुकी थी और आज तकरीबन 600 से ज़ायद पर्चे नामजदगियों के दाखिल होने की इत्तला मिली है। दूसरी जानिब हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुजवज़ा बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ जोन्स के लिए आला ओहदेदारों का तकर्रुर किया है। ईस्ट जोन के लिए शिखा गोयल, वेस्ट जोन के लिए अनिल कुमार, साउथ जोन के लिए DS चौहान, सेंट्रल जोन के लिए डॉक्टर तरुण जोशी और नॉर्थ जोन के लिए अविनाश मोहंती को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल पर्चे नामजदगी की जांच होगी। 22 तारीख को पर्चे नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं और 1 दिसंबर को रायदही होगी, जबकि 4 दिसंबर को नताइज जारी किए जाएंगे। साइबराबाद पुलिस की जानिब से GHMC इंतखाबात की रायदही के सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि साइबराबाद में तकरीबन 38 GHMC डिवीजन्स आते हैं, जिनमें 2569 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और मौसर पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। डिसेंबर 1 మన GHMC ఎలక్షన్స్ దానికి మన సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ఏరియాలో చాలా కట్టుదిట్టమైన పకడ్బందీగా బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది. మొన్నే స్టార్ట్ అయిన నామినేషన్స్ నిన్నటి దాకా మొత్తం 177 నామినేషన్స్ ఫైల్ కావడం జరిగింది. ఈరోజు లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్స్. మన దగ్గర 6 సెంటర్స్ ఉన్నాం. 6 సెంటర్స్ లో కూడా చాలా కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో 38 వార్డ్స్ ఉన్నాం, 38 వార్డ్స్ ఉన్నాం. దాదాపు 19 పోలీస్ స్టేషన్స్ కవర్ కావడం జరుగుతుంది. 7 సబ్ డివిజన్స్, 3 జోన్స్ లో కూడా ఈ అన్ని 38 వార్డ్స్ ఉంటున్నాం. సో మొత్తం 2569 పోలింగ్ స్టేషన్స్, 674 పోలింగ్ లొకేషన్స్. అదేవిధంగా ఈ ఒక్క లొకేషన్స్ లో 243 సెన్సిటివ్ క్రిటికల్ పోలింగ్ లొకేషన్స్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అంటే దాదాపు 770 పోలింగ్ స్టేషన్స్ క్రిటికల్ అండ్ సెన్సిటివ్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ ని కవర్ చేయడానికి 179 రూట్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేశాను. ఇప్పటిదాకా మన పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మన కన్సర్న్ నోడల్ ఆఫీసర్స్ ACPs పొలిటికల్ పార్టీస్ తోని మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. నేను మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ తోని మీటింగ్ కండక్ట్ చేసి అందరిని కూడా మనము సెన్సిటైజ్ చేయడం జరిగింది. దాని తోడుగా మనము ప్రతి ఒక్క GHMC సర్కిల్ గా మనం ఒక ACP స్థాయి అధికారిగా నోడల్ ఆఫీసర్ గా నామినేట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనము మన దగ్గర ఉన్న 674 పోలింగ్ లొకేషన్స్ కి वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस भी चौकस हो गई है। साउथ जोन पुलिस ने गुज़िश्ता रात कुरमागुड़ा डिवीज़न में फ्लैग मार्च किया। मुतालिका पुलिस अहदेदार ने बताया कि बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र अमन अमान की बरकरारी और आवाम में एतमाद बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस की तरफ से हसास इलाकों में भी चौकसी देखी जा रही है। ये GHMC इलेक्शन का डेट्स आगाज़ किया गया
कल से नॉमिनेशन लेने का स्टार्ट हो गया। कल आज और कल फाइनल डे है नॉमिनेशन लेने के लिए। 1 दिसंबर इलेक्शन होगा, 4 को काउंटिंग होगा। इसमें ये जो बहुत प्रेस्टिजियस इलेक्शन है और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने पूरे दम लगा के इसमें चल रहे, इसी वजह से इसको पीसफुल निकलवाने का और सभी जो वोटर है उनको अपने मर्ज़ी से फ्रीली अपना इलेक्शन करवाने का एक माहौल बनाने का कोशिश है। इसमें इसी कार्यक्रम में हम कोरमगुड़ा वार्ड आज नाइट को लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, जहां पहले कुछ दंगे फसाद हुए, इसी कारण यहाँ ये फ्लैग मार्च रखा गया। लेकिन अब सबको याद होगा, जब से टीआरएस गवर्नमेंट आ गई 2014 से कोई अभी तक कम्युनल इंसिडेंट नहीं हुआ और हम इसी सिलसिला को जारी रखेंगे। थैंक यू। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में कमी देखी गई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 854 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1423 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,61,728 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,47,790 बताई गई है। आज सुबह 1,057 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 12,515 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 154 नए केसेस सामने आए। सैबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक डेटिंग फ्रॉड गैंग के 8 अराकीन के जुमला 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से एक लैपटॉप के अलावा 28 मोबाइल फ़ोन्स और ATM कार्ड्स बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद ने बताया कि मज़कूरा रैकेट बैन रियासती और कई रियासतों से मुलजिमीन इसमें मुलविस हैं। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद VC सजनार IPS ने मीडिया को तफसीलात बताई। మొత్తం 5గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। విజయ్ కుమార్ సాహా అని చెప్పి ఈజ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ సిలిగురి, డార్జిలింగ్ మోర్ అని చెప్పి అక్కడ ఊర్లో ఉంటారు। అదేవిధంగా వినోద్ కుమార్ షా, ఈయన కూడా అదే సేమ్ ప్లేసు। మొహమ్మద్ నూర్ ఆలం అన్సారీ, ఈ ఆల్సో ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ సిలిగురి। ఇద్దరు టెలికాలర్స్, దీపా హల్దారు, ఈజ్ అ నేటివ్ ఆఫ్ జల్పైగురి, ప్లస్ షీకా హల్దార్ అని చెప్పి ఈజ్ ఆల్సో టెలికాలరు, సో ఈజ్ ఆల్సో నేటివ్ ఆఫ్ జల్పైగురి। ఈ అందరినీ 5గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। సో ముగ్గురు మెయిన్ ఎవరు ఈ మాస్టర్ మైండ్ ఉన్నారు, సంతు దాసు, అమృత్ పాల్ అలియాస్ అమృత్ శర్మ, అమిత్ శర్మ ప్లస్ సుశాంత్ కుమార్ సా అని చెప్పి ముగ్గురు అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు। ఇదే మెయిన్ మాస్టర్ మైండ్। ఈ ఒకసారి ఈ యొక్క మోడస్ ఆపరెండి ఎట్లా ఉంది ఏముందని చెప్తే, వీళ్ళు ముఖ్యంగా ప్రజలకు కూడా చాలా మంది ఎస్కార్ట్ సర్వీస్ కావాలని చెప్పి, కొంతమంది ఎస్కార్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వాలని చెప్పి చాలా మంది వెబ్సైట్స్ ని సెర్చ్ చేయడం జరుగుతుంది। సో ఇది ఒక ఆసరా తీసుకుని ఒక ముఠాగా వీళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్యాంగ్ గా ఫామ్ అయ్యి మొత్తం 3 లెవెల్లో వీళ్ళు చీటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఫస్ట్ ఈ మాస్టర్ మైండ్ అమృత్ పాల్ అలియాస్ అమిత్ శర్మ అండ్ సుశాంత్ కుమార్ షా అని చెప్పి వీళ్ళంతా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ముందు ఉన్నారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పైన ఉంటారు, వాళ్ళు ఫస్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఉంటారు। వాళ్ళ సిలిగురిలో ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా కనిపించరు, వాళ్ళ ఆఫీస్ లో కూడా ఉండరు। వాళ్ళు ఇలాంటి టెంట్ లోపలేమో ఒక కాల్ సెంటర్ ఉంటుంది, ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రాడ్ లేదంటే డేటింగ్ ఫ్రాడ్, బయట మాత్రం పేరు ABR ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు। మీకు మన వెబ్సైట్ जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के हबीबनगर में महकमे सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया ताकि बारिश और सैलाब से मुतासरा आवाम को तिबी सहूलियात पहुँचाई जा सके। म्यूनसिपल कमिश्नर जलपल्ली म्यूनसिपलिटी G प्रवीण कुमार ने इस कैंप की निगरानी की, जबकि मेडिकल ऑफिसर्स ने कैंप की कामयाबी के लिए मुमकिन इक़दाम किए। आपको जो नहीं खाया, खांसी की दवा, खांसी की दवा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर कांदकूर डिवीज़न बोल रहा हूँ मैं। एक कलेक्टर
कलेक्टर सर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर आदेशानुसार जो है फ्लड अफेक्टेड इलाका हबीब नगर, शाहीन नगर एरिया में फ्लड अफेक्टेड ओके ज़्यादा एपिडेमिक्स आए हुए हैं। ज़्यादातर एपिडेमिक्स में यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और जो है स्किन एलर्जी का, इस मामले में बहुत कुछ है बोल के कलेक्टर के थ्रू जरिए हमको मैसेज आया। फिर उनके ऑर्डर के मुताबिक ये अभी आज का दिन ये हबीब नगर बस स्टॉप ये इलाके में पूरा पब्लिक लगभग 150 से 200 के ऊपर तक लोगों को एसओटी एलबी नगर ने वनस्लीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके नागरजुना कॉलोनी में चलाए जा रहे गैर कानूनी गेमिंग हाउस पर धावा किया। इस मुकाम से 5 अफराद जी कृष्णा रेड्डी, के श्रीनिवास रेड्डी, वी गिरी, ए श्रीनिवास रेड्डी और एन नरेंद्र को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 48,250 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त की गईं। बाद अज़ां मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को वनस्लीपुरम पुलिस के हवाले किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने हवाला रैकेट को बेनकाब करते हुए रामकृष्णा थिएटर के करीब 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 25,50,000 रुपये नकद रकम बरामद की। वेस्ट जोन टीम ने आइबिट्स पुलिस स्टेशन हदूद में सुरेश ओहजा और एम श्रीनिवास राव को हिरासत में लिया और मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को आइबिट्स पुलिस के हवाले किया गया। बालापुर इलाके में एक नौजवान का कत्ल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक वादी सालेहीन में नौजवान पर मोहल्लिक हथियारों से हमला किया गया। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और जख्मी नौजवान को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक 44 साल मोहम्मद इमरान खान साकिन वादी सालेहीन ने 31 साल अनम खान पर हमला किया और शदीद जख्मी उसे कर दिया गया। हालत नशे में दोनों के दरमियान बहस व तकरार हुई थी, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। बालापुर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसले पर तहकीकात है। सऊदी अरब में सऊदी इंडियन बिजनेस नेटवर्क SIBN को वसअत दी जा रही है और इसके चैप्टर्स मुख्तलिफ शहरों में तश्कील दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जिद्दा चैप्टर के लिए SIBN की जानिब से एक बिजनेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया। मज़कूरा बिजनेस मीट का अहतमाम जिद्दा कौंसल खाने की जानिब से किया गया था, जिससे डॉक्टर औसाफ सईद इंडियन एम्बेसडर ने खुसूसी तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर माज़ीन बतरजी सदर जिद्दा चैप्टर के अलावा दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, चेयरमैन अल बिलाद पब्लिकेशन व सीनियर जर्नलिस्ट खालिद अल मोइना व दीगर भी मौजूद थे। हामिना मरियम कौंसल कॉमर्स ने हदिया तशक्कुर पेश किया, जबकि इस तकरीब में कौंसल के दीगर सेक्रेटरीज बशमुल दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि SIBN का क़याम डॉक्टर औसाफ सईद ने कौंसल जनरल की हैसियत से किया था और अब इसे मज़ीद तौसी दी जा रही है। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने हल्के असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीज़न से वाबस्ता इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा मुकामी फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास से खिताब करते हुए मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने तमाम इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों को हिदायत दी कि वो तमाम डिवीजन्स में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करें। इस इजलास में मजलिसी कायद व साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी खिताब किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन्स के उम्मीदवार और उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। होती थी, उनका जज्बा देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये पुराने लोगों की तरफ से ही आज आप और हम इस मुकाम पे बैठे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, बेशक जब कभी भी इलेक्शन आता है,
जो सियासी पार्टी के अंदर मेहनत करता है, हर आदमी की ख्वाहिश भी होनी चाहिए और ख्वाहिश रखनी भी चाहिए, मुझे भी ओहदा मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। उसी के अंदर आप और हम दोनों ये सोचते हैं कि भाई आने वाले इलेक्शन के अंदर हो जाए। इसमें जमात ख्वाहिशमंद हजरात के फॉर्म लेती है, मगर आप सोचिए अल्लाह का करम यह है कि जमात के सदर के ऊपर कितना वजन और प्रेशर होता होगा, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टीआरएस पार्टी ने जीएचएमसी इंतखाबात में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर 100% अमल किया है। जीएचएमसी हुदूद में वाईफाई मुफ्त देने का वादा कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी मंशूर किया जारी। हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के लिए दफातर पर हुजूम। मजलिसी उम्मीदवारों ने मुतालिका दफातर में पर्चे नामजदगी किया दाखिल। सदर जनसेना पार्टी पवन कल्याण की बीजेपी कायदीन से मुलाकात। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की तायीद का ऐलान। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने डेटिंग फ्रॉड गैंग का पर्दा किया फाश। बैन रियासती टोली गिरफ्तार। साइबराबाद कमिश्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।